Hello everyone, welcome to Gyan Mimansa. This is our fourth video in the series of international relations. In this video, we will be talking about BIMSTEC. From the previous video, we have started posting one question in every video, and in this video also there is one question regarding the topic we are talking about. You can write the answer of the question and send it to me at info@gyanmimansa.com and I will evaluate that. And the feedback may be important for you, and also try start writing the answer as soon as possible if you are preparing for 2021, and for 2022 guys also, if you start as early as possible it would be good for you. So starting today's video about BIMSTEC. As you all know, BIMSTEC is Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technological and Economic Cooperation. It is a sub-regional grouping. सब-रीजनल ग्रुपिंग का मतलब क्या है कि जैसे साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, ये रीजन्स है, इन दोनों का मिक्स करके बना है बिमटेक। 5 साउथ एशियन कंट्रीज है, 2 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है। इस टोटल वर्ल्ड की 22% पॉपुलेशन जो है इन 7 कंट्रीज में रिसाइड करती है, और इन तीनों की जो कंबाइंड जीडीपी है दैट इज $2.7 ट्रिलियन combined GDP of all the 7 countries. So the question for you today is highlight the objectives of BIMSTEC and its importance for India. Suggest some measures for its better utilization by India. अब BIMSTEC as a forum है, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे डेफिनेटली, इसके इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया के लिए, और कुछ मेजर्स जो कि सजेस्ट करने हैं आप लोगों ने। दिस इज अ 15 मार्कर क्वेश्चन। इसके 3 पार्ट्स हैं: ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया एंड बेटर यूटिलाइजेशन के लिए सजेशंस। ट्राई टू लिमिट इट इन 250 वर्ड्स। Moving ahead, let's look at it. BIMSTEC, it was founded in 1997, Bangkok Declaration. Okay, it has 7 countries, as I told you, 5 countries from South Asia and 2 from Southeast Asia. So the 7 countries are Bangladesh, India, Myanmar, Sri Lanka, Thailand, Nepal and Bhutan. So 1, Bangladesh, India, Sri Lanka, Nepal and Bhutan are from South Asia, and 2, Thailand and Myanmar from Southeast Asia. Okay, you can see that Myanmar is bold because it joined later in 1997, and then Nepal and Bhutan, they joined in 2004. So these are the countries. Again, you can look in the map. B, Bangladesh, India, M, Myanmar, S, Sri Lanka, T, Thailand, and then later joined by Nepal and Bhutan. So these are 7 countries. So as I already told you, 1997 Bangkok Declaration started with BISTEC, Bangladesh, India, Sri Lanka, Thailand Economic Cooperation. Then after it was joined by Myanmar in 1997, it became BIMSTEC, that is Bangladesh, India, Myanmar, Sri Lanka, Thailand Economic Cooperation. And in 2004, after joining of Nepal and Bhutan, it became BIMSTEC, Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technological Economic Cooperation. Okay, what are the objectives? This was also in the question, so you can write from here in your own language. Creating an enabling environment for rapid economic development of the sub-region. Creating an enabling environment for rapid economic development. So first objective is its economic development. Then encouraging spirit of equality and partnership. So every partnership of India is based on equality. All the partners are equal. There is no first among the equals. Okay, even though in this grouping also India is the largest economy, like SAARC and every other neighborhood grouping, but India always wants that every partnership should be based on equality. Next is promoting active collaboration and mutual assistance for areas in common interest. ठीक है, जैसे common interest है कनेक्टिविटी, कल्चर एटसेट्रा, इसमें कोलैबोरेशन की बात है, और सपोर्ट देना है, एक्सेलरेटिंग सपोर्ट फॉर ईच अदर इन द फील्ड्स ऑफ एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में सबको आपस में सपोर्ट करना है और एक दूसरे की सपोर्ट से आगे बढ़ना है। सो दिस इज अबाउट बेसिकली अबाउट कोलैबोरेशन इन फील्ड्स ऑफ इकोनॉमी, एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कल्चर एंड कनेक्टिविटी। ओके, so principles of BIMSTEC: sovereign equality,
territorial integrity, non-interference in internal affairs, political independence, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड म्यूचुअल बेनिफिट। इनमें से 6 में से 5 जो है वो पंचशील में भी है। सो दीज 5 आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। कहीं भी हो, कोई भी फॉरेन पॉलिसी हो, इंडिया के जो पंचशील है, these are sovereign equality, territorial integrity, non-interference in internal affairs, peaceful coexistence and mutual benefit. These 5 tenets, these are Panchshil, even though they were signed in 1954 between India and China, but these are the 5 basic tenets of every Indian foreign policy. And political independence also is added in this BIMSTEC. Okay, so these should be remembered. Now India and BIMSTEC. What is the advantage of India? Advantage to India for BIMSTEC, from BIMSTEC. So these are neighborhood first policy का part है. I told you in the earlier video, it is very important. Neighborhood बहुत important है इंडिया के लिए. फिर इंडिया की नेक्स्ट पॉलिसी एक्ट ईस्ट एशिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर कनेक्टिंग साउथ ईस्ट एशिया. साउथ ईस्ट एशिया इज प्रॉस्परिंग रीजन, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए सार्क का रेलेवेंस जो है, जैसे कि हमें पता है, कम होता जा रहा है ड्यू टू इंडिया पाकिस्तान. ठीक है, तो इसलिए साउथ ईस्ट एशिया में इन्फ्लुएंस बढ़ाना जरूरी है. सो एक्ट ईस्ट एशिया पॉलिसी का मेन टीनेट है बिम्स्टेक. फिर है इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ताकि वो लिंक हो सके मेनलैंड से. ठीक है, तो ये दीज 3 आर द बेसिक टेनेट्स, बेसिक बेनिफिट्स. ठीक है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में. एक्ट ईस्ट पॉलिसी हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे. नेक्स्ट इज फॉर कनेक्टिविटी. 3 कनेक्टिविटी रूट्स विद इन द बिम्स्टेक है. वन इज कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, जो इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार को कनेक्ट करेगा. इसके अलावा एशियन ट्राइलेटरल हाईवे, आईएमटी बोलते हैं इसको, इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे. एंड द थर्ड वन इज बीबीआईएन, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट. These all 3 are very important for connectivity, specifically for north east. और connectivity अगर अच्छी होगी तो trade and economy prosper करेगी. Remember this. Alternate to SAARC, as we already talked. इसके अलावा चाइना, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, इंडिया के नेबरहुड में चाइना का इन्फ्लुएंस इज क्वाइट हाई, स्पेसिफिकली होल नेबरहुड. और अगर हम बात करें बिम्स्टेक कंट्रीज पे, तो म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, इन सब के ऊपर जो चाइना का इन्फ्लुएंस है वो हाई है. तो इसकी बट चाइना जो है इन्फ्लुएंस कर रहा है बे ऑफ बंगाल में, तो बे ऑफ बंगाल शुड बी द रीजन ऑफ इंडिया. ठीक है, क्योंकि देखो जो इंडियन ओशन है, दैट इज कॉल्ड टू बी रीजन ऑफ लो हैंगिंग फ्रूट्स. लो हैंगिंग फ्रूट्स का मतलब क्या है, यहाँ पे इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो कम है, इंडिया कैन बी द मेजर प्लेयर हियर. तो इस केस में क्या है, तो बिम्स्टेक का यूज करके इंडिया इंडियन ओशन में, स्पेसिफिकली द बे ऑफ बंगाल रीजन में अपना बढ़ा सकता है अपनी वर्चस्व, दैट इज आवर स्ट्रेंथ. Okay, that can be improved, specifically the economic strength. What are the challenges? जैसा कि हमने देखा, बहुत सारे फोकस एरियाज हैं, इकोनॉमी, एजुकेशन, कल्चर, साइंस एंड टेक, कनेक्टिविटी. तो इतने सारे अगर फोकस एरिया होंगे तो इट गेट्स डिफिकल्ट टू फोकस ऑन सम कोर एरियाज. ठीक है, कोर एरियाज पे अगर फोकस करना डिफिकल्ट हो जाएगा तो बहुत सारे एरियाज पे बहुत सारी बातें चलती रहेगी. मान लीजिए यहाँ से एक बात चली, दूसरी, तीसरी, गोइंग ऑन. ठीक है, और कोई भी बात क्या, काफी सारी जो इश्यूज हैं वो एंड तक नहीं पहुंचते, उनका सोल्यूशन नहीं होता और वो चलते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे फोकस एरियाज हैं. ठीक है, बायलैटरल इश्यूज बिटवीन मेंबर नेशंस. अब जो 7 मेंबर्स हैं, इनमें किसी न किसी के आपस में बायलैटरल इश्यूज रहते हैं. इंडिया का बांग्लादेश के साथ जैसे इवन लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट इज सॉल्व, बट वाटर डिस्प्यूट रहता है. म्यांमार के साथ रोहिंग्या इश्यूज रहते हैं. नेपाल के साथ रिसेंट बॉर्डर डिस्प्यूट है. श्रीलंका के साथ तमिल इश्यूज हैं. और सिमिलरली म्यांमार का थाईलैंड के साथ इश्यूज है, म्यांमार के बांग्लादेश के साथ इश्यूज हैं. सो दिस इश्यूज गोज ऑन. तो जब तक बायलैटरल इश्यूज हैं तब तक ये चैलेंजेस आते रहेंगे, क्योंकि अगर किन्हीं दो कंट्रीज के इश्यू अच्छे नहीं है तो मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पे भी उनके जो रिलेशंस है दैट मे नॉट बी वेरी गुड. इनकंसिस्टेंसी, ये बहुत बड़ा इशू. अगर आप ईयरली नहीं मीटिंग होंगी, ठीक है, तो क्या होगा, ईयरली मीटिंग नहीं होंगी, जो भी इश्यूज है, आपने लास्ट ईयर कुछ बात की थी, 2 साल निकल गए, तब तक तो भूल भी जाते हैं. ठीक है, तब तक इश्यूज जो है, इश्यू ही बदल जाता है, जो जरूरत का था वो खत्म हो जाती है. तो ये चलता रहता है. तो जो भी नेगोशिएशंस है वो अनकंक्लूसिव होती है, इनकंक्लूसिव होती है, और 2 साल 3 साल बाद फिर से मीटिंग हो रही है जिसमें कि नए इश्यूज आ रहे हैं और पुराने इश्यूज पे बात नहीं हो पाती है. एंड देन चाइना फैक्टर, जो कि पीछे भी मैंने बताया था, चाइना को रोकने के लिए हेल्पफुल है. सिमिलरली चाइना का इन्फ्लुएंस है इन कंट्रीज के ऊपर, सो इट गेट्स बिट डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू कोऑपरेट एंड अदर कंट्रीज टू कोऑपरेट विद इंडिया. So this was all about
दिस बिम्स्टेक, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ बिम्स्टेक इसी से पता चल जाती है कि प्राइम मिनिस्टर ने जब 2019 में ओथ टेकिंग सेरेमनी में बिम्स्टेक के लीडर्स को बुलाया था, ऑल द 6 कंट्रीज, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अल्टरनेट टू सार्क, ठीक है। सो क्वेश्चन वाज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिम्स्टेक, प्रिंसिपल्स ऑफ बिम्स्टेक, why are they important for India and what are the way forwards। तो हमने challenges तक पढ़ा, वे फॉरवर्ड है वो आपने लिखना है। व्हाट कैन बी द सजेशंस, जैसे कि पिछले वीडियो में अबाउट द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, उसमें मैंने वे फॉरवर्ड सजेस्ट किए थे। आगे से मैं कोशिश यही करूंगा कि आधा मैं बताऊंगा और कंक्लूजन आप खुद लिखेंगे और वे फॉरवर्ड आप खुद लिखेंगे। ट्राई टू राइट दीज आंसर्स, आई एम गेटिंग अ फ्यू आंसर्स, बहुत कम बच्चे लिख रहे हैं, बट इट्स ओके, आई एम इवैल्यूएटिंग। इफ यू वांट टू गेट द बेनिफिट for 2021 or 2022 people, start writing and try to send it to me on info@gyanmimamsa.com। इसके अलावा you can comment in the comment box and the description box में लिंक है सॉरी टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का और फेसबुक पेज का, you can connect me to me from there also। So in the next video we will be talking about Act East Asia policy of India, and further we will be increasing the number of videos, okay। Thank you, all the best।